Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. Today is our 16th lecture. In previous lecture, we discussed about subtraction, how we can perform subtraction in digital devices. We see that we can perform subtraction using 2's complement of a number and then add it into the other number. We see how we can make an subtractor circuit which can perform both addition and subtraction. We analyze that circuit using an example, and later on we say that we can make a bigger circuit of from 4 bit to 8 bit 16 bit using cascaded adder subtractor circuit of the above version. And after it, we see some examples of that adder subtractor, cascaded adder subtractor example. We see an 8-bit number addition and subtraction. In today's lecture, we will discuss about BCD adders. What are BCD adders? As discussed earlier, we know that BCD numbers are represented from decimal digits 0 to 9. They are 4-bit, and the BCD code has numerous applications in digital logic devices such as counters and digital clocks. So BCD adder, what is a BCD adder? BCD adder is just an adder circuit that adds two BCD numbers. But BCD number is represented in 4 bits and we cannot have a value greater than 9. So if a number 10 comes, that can be represented in binary, but in BCD there is no number such as 10. We have numbers 0 to 9. So an error condition comes in whenever you get a number greater than 9. We will look through it, what are the error conditions and how we can perform the BCD additions. We will go through the single bit BCD adder circuit, and then after it we will see the BCD error detection circuit, and in the last we connect that error detection circuit with our BCD adder. हम लोगों ने पहले ये डिस्कस किया था, हमें पता है कि BCD नंबर्स जो हैं वो 0 से 9 तक होते हैं. 4 बिट्स के अंदर आप उसको रिप्रेजेंट करते हो. अगर कोई नंबर आपके पास 4 बिट से ज़्यादा आ जाता है तो वो एरर क्रिएट करता है. ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि हम उन एरर्स कैसे डील करते हैं. अगर हम दोबारा उसको गो थ्रू करेंगे, हम देखेंगे हम उनको एरर्स कंडीशंस को सही करके कैसे BCD एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं. सिंगल बिट BCD एडर सर्किट बना के देखेंगे, उसके बाद उस BCD का एरर सर्किट को देखेंगे, और उस एरर सर्किट के बाद हम उस BCD सर्किट के कनेक्शंस को देखेंगे कि हम एरर सर्किट को कैसे उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं. तो BCD एडिशन एंड एरर कंडीशंस. BCD numbers can be added together using BCD addition. BCD addition is similar to normal addition except for the case when the sum of two numbers exceeds 9 and a carry is generated. If the sum exceeds 9, we have to add 6 in it to convert that invalid number into a valid number. The carry generated by a 6 to the invalid BCD digit is passed on to the next BCD digit. ठीक है, तो अब हमें पता है कि 4 बिट के कोड में आप 16 पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं. ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट 10 4 बिट कॉम्बिनेशन है
उनको हम वैलिड बीसीडी कॉम्बिनेशंस कहते हैं, और जो लास्ट 6 कॉम्बिनेशंस हैं उनको आप इनवैलिड कहते हो, और कोशिश करते हो कि बीसीडी में वो अकर ना हो। और इन केस अगर वो आ जाते हैं कि आपके पास कोई नंबर आपके पास आप ऐड कर रहे हो दो नंबर्स को, जैसे 6 + 6 कर रहे हैं तो 12 रिजल्ट आएगा, 12 इज नॉट अ वैलिड बीसीडी नंबर। तो हम क्या करेंगे, हम 12 के अंदर +6 ऐड करेंगे, ठीक है, +6 ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट आपके पास 18, ऑल्दो 18 आता है, मगर +6 12 में ऐड करोगे तो आपके पास 16 के बाद वो दोबारा 0 1 2 हो जाता है, ठीक है। तो 12 के अंदर अगर 6 ऐड करेंगे तो 13 14 15 16 0 1, तो 1 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से हम बीसीडी एडिशन परफॉर्म करते हैं। उसमें एरर कंडीशंस यही है कि जब भी आपके पास 9 से बड़ा नंबर आएगा तो आपको उसमें +6 को ऐड करना पड़ेगा। तो ये एक बीसीडी एडिशन कैसे परफॉर्म होती है उसकी एक ब्लॉक डायग्राम है आपके पास, ठीक है। एडिशन ऑफ 2 बीसीडी डिजिट्स रिक्वायर्स 2 4-bit parallel adders, that is the first 4-bit adder and second 4-bit adder. A BCD adder uses a circuit which checks the result at the output of the first adder circuit, which is this one, okay, that it checks the output of the first adder circuit to determine if the result has exceeded 9 or not, or a carry has been generated or not. If the circuit determines any of the two error conditions, the circuit adds 6 to the original result using the second adder circuit, which is this one. And the output of the second adder gives you the correct BCD output. If the circuit finds that the result of the first adder to be a valid BCD adder between 0 and 9 and no carry has been generated, then the circuit adds a 0 to the valid BCD results using the second adder, and the output of the second adder gives the same result. हम बीसीडी एडिशन के करेक्शन सर्किट की बात कर रहे हैं, तो उसके ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में एक देख रहे हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं हमारे पास जो बीसीडी एडिशन सर्किट है, करेक्शन सर्किट है, वो दो एडर्स के ऊपर कंसिस्ट करेगा, ठीक है। एक फर्स्ट एडर है और एक सेकंड एडर है। ए और बी दो नंबर्स हैं, ठीक है, जिनको आप ऐड कर रहे हो। तो सेकंड एडर से पहले हम एक सर्किट बनाएंगे जो ये चेक करेगा कि इनका सम 9 से ग्रेटर है या नहीं, या कैरी जनरेट हुआ है या नहीं, ठीक है। अगर कैरी आउट जनरेट होता है या ये नंबर 9 से बड़ा डिटेक्ट होता है तो आपके पास 6, ये जो सेकंड आपके पास एडर है, जो आपके पास सम जनरेट होगा उसके अंदर 6 ऐड हो जाएगा, ठीक है। 6 ऐड होने से आपके पास वो वैलिड बीसीडी नंबर आ जाएगा, ठीक है। और आप सेकंड एडर में कैरी इनको 0 कर रहे हैं, और अगर इन केस आपके पास वो 9 से लेस ही है, वैलिड बीसीडी नंबर है, तो ये और कैरी भी जनरेट नहीं हुआ, तो ये सेकंड एडर उसमें जो आपका वैलिड बीसीडी नंबर रिजल्ट होगा ऊपर सम का, उसमें सिर्फ 0 ऐड होगा, और 0 ऐड होने के बाद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपके पास वही आउटपुट पे वैलिड बीसीडी नंबर आ जाएगा। आगे हम देखते हैं कि कैसे इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं, ठीक है। The circuit checks if the output of the first adder has exceeded 9 is simple a combinational circuit with the following table, which you can see on the screen. We can see that after number 9, the output of the detectors BCD invalid BCD detector is 1, ठीक है। तो शुरू के जो 9 नंबर हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक, ये 9 तक हमारे पास यहां तक, ठीक है, यहां तक आपके पास ये 9 बनता है। अब ये 10 की बाइनरी है ये वाली, ठीक है, और ये F आपके पास आउटपुट है। जब मेरे पास 9 से बड़ा नंबर आएगा तो मेरे पास आउटपुट 1 हो जाएगी, ठीक है।
अब इन मिन टर्म्स की हम इक्वेशंस बनाते हैं। ये हमारे पास फंक्शन टेबल है, इससे हम बूलियन एक्सप्रेशन बनाएंगे। बूलियन एक्सप्रेशन के बाद हम उसे इंप्लीमेंट करेंगे लॉजिक डायग्राम के थ्रू, और फिर हार्डवेयर पे हम उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास मैपिंग है। अगर हम देखें तो जब भी हमारे पास 10 से ऊपर नंबर है, ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो इनके लिए हम लोगों ने पेयर मैपिंग के मैप पे मैपिंग करके इनके ग्रुप्स बना लिए। अब ये जो ऊपर वाला ग्रुप एक बन रहा है, ठीक है, यहां से मेरे पास सिर्फ S3 और S2 कॉमन आएगा, S3 और S2 कॉमन आएगा। और यहां वाला जो ग्रुप है, ये जो सेकंड वाला ग्रुप है, मैं पेन का कलर चेंज करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो। जो ये सेकंड वाला ग्रुप है, इससे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, यहां से इन दोनों में क्या कॉमन है, ये चीज, ये कॉमन है, S1 कॉमन है, ठीक है, S1 आ गया। और इधर से इन दोनों में क्या कॉमन है, S3 कॉमन है, अगेन S3 कॉमन है। अब अगर हम देखें तो S3 दोनों में कॉमन है, तो हम S3 इंटू S2 प्लस S1, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास वो एरर डिटेक्शन सर्किट की इक्वेशन बनती है। अब इसमें या तो ये हो या फिर हमारे पास कैरी अगर जनरेट हो, दोनों सूरतों में आपके पास 1 आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैरी आउट को भी इधर प्लस कर देते हैं। तो जो टोटल आपके पास सम की इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है, लाइक दिस वन। ये आपके पास कैरी आउट फ्रॉम द फर्स्ट एडर आ रहा है, ठीक है। ये S1 और S2 को हमने एंड और गेट ले लिया, ठीक है, S1 और S2 को और गेट ले लिया, और जो रिजल्ट आ रहा है उसको आप S3 के साथ एंड कर रहे हो, और आखिर में आप सी आउट 1 के साथ कर रहे हो। तो ये लॉजिक डायग्राम आपके पास आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास S1 प्लस S2 बनेगा, यहाँ पे आपके पास S3 एंडेड विथ दिस S1 प्लस S2 आ जाएगा, और आखिर में इन सारों के साथ ये कैरी सी आउट ऐड हो रहा है। यहाँ पे आपके पास प्लस सी आउट 1 जो फर्स्ट एडर का आपके पास रिजल्ट है। अब ये एरर सर्किट डिटेक्टर की आपके पास इंप्लीमेंटेशन आ रही है, लॉजिक डायग्राम आ रही है। अब हम देखेंगे कैसे हम इसको आगे कनेक्ट करेंगे अपने सर्किट के साथ। तो ये इस तरह की आपके पास इंप्लीमेंटेशन आती है, ठीक है। ऊपर सम नॉट, सम 1, सम 2, सम 3 आपके पास आउटपुट है उन दो नंबर्स का सम की। कैरी आउट भी उसी, कैरी आउट 1 भी उसी सर्किट का आपके पास आ रहा है। एडिंग ऑफ 6 when error conditions are detected and adding a 0 when error conditions are not detected is implemented by connecting the output of invalid BCD detector circuit to bits B1 to B2 of the adder. Bit 0 and bit 3 are permanently zeros, and bit 1 and bit 2 are connected with the output of the invalid condition detector, ठीक है। तो ये जो एडर डिटेक्टर की आउटपुट है वो आप हम इनपुट बी, सेकंड एडर की इनपुट बी पे कनेक्ट करेंगे, ठीक। बिट 0 और बिट 3 को आप 1 रखोगे, और 1 और 2 को आप इससे कनेक्ट कर दोगे, क्योंकि 0 1 1 0 आपके पास 6 की बाइनरी है। तो यहाँ पे अगर आउटपुट 1 होगी तो यहाँ पे 0 1 1 0 आ जाएगा, और अगर इनवैलिड बीसीडी नंबर डिटेक्ट होगा तो उस नंबर के अंदर आप +6 को ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट वैलिड बीसीडी नंबर आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने पहले इस लेक्चर 14 में देखा था कि हमारे पास जो ICS 74283
वो बाइनरी एडिशन के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे जो एडर है ये वही 74283 ही है, हम उसी को ही यूज कर रहे हैं। 74283 वॉज बेसिकली 4 बिट बाइनरी एडर, हम उसी एडर को आगे यूटिलाइज कर रहे हैं बीसीडी एडिशन के लिए। अब हमने देखा कि एक 1 डिजिट बीसीडी एडर हमने देखा था कि एक 4 बिट्स का एक नंबर है, 4 बिट्स का दूसरा डिजिट है, उनको आप ऐड करते हो और आप उनको कैसे करेक्ट करके सम कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि अगर हमें 2 डिजिट्स का बीसीडी एडर मिले, ठीक है, मींस कि अगर आपके पास 10 प्लस 10 करना हो या 9 10 प्लस 10 करना हो तो 1 एक डिजिट है, 0 दूसरा डिजिट है, इसी तरह 1 एक डिजिट है और 0 दूसरा डिजिट है। 10 प्लस 12 कर लें, इसी तरह आपके पास 2 डिजिट्स के बीसीडी नंबर होंगे। हम उनको ऐड करने के लिए हमें क्या सर्किट बनाना पड़ता है, वो कुछ इस तरह का सर्किट बनेगा। तो ये आपके पास 2 डिजिट बीसीडी एडर है, ठीक है। अब इसको हम स्प्लिट करते हैं, यहां पे एक पोर्शन आपके पास ये आ रहा है, ठीक है, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और यहां पे दूसरा पोर्शन आपके पास ये आ रहा है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का। तो 0 to 3 पहले फर्स्ट जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उनके लिए हम ये वाले पोर्शन यूज करेंगे, और इसी तरह जो लास्ट 4 डिजिट्स हैं जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उनके लिए हम ये यूज करेंगे, मींस 4 बिट इधर, 4 बिट इधर, 4 बिट इधर, 4 बिट इधर। अब इनको हम बाइनरी एडर में ऐड करेंगे। अब इसका सम भी डिटेक्ट होगा, इसका सम भी डिटेक्ट होगा, या तो अगर इसका सी आउट इधर आ रहा है, इसका भी सी आउट इधर आ रहा है। अगर हमारे पास कैरी जनरेट हो रहा है और डिटेक्टर सर्किट डिटेक्ट कर रहा है तो आप इसमें 6 यहाँ पे आप जनरेट करोगे और सम के अंदर 6 ऐड हो जाएगा, तो आपके पास 0 to 3 सम मिल जाएगा। इसी तरह S4 में 4 to 7 आपके पास सम मिल जाएगा। एक एग्जांपल करके देखते हैं, ठीक है। मैं 2 डिजिट्स को जैसे ऐड करता हूं 10 प्लस 12, ठीक है। अब 10 प्लस 12 आपके पास क्या आंसर आएगा, 22, यानी ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट है, ये फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड है। अब 10 है, ठीक है, तो 10 की बाइनरी अगर हम देखें तो आप अगर मैं बीसीडी को देखूं तो 0 0 0 1 और 0 0 0 0, तो ये बीसीडी कोड बनेगा 10 का, और 12 का बनेगा 0 0 0 1 और 0 0 1 0, ये बनेगा 12 का बीसीडी। अब उसी तरह जो ये जीरोज हैं ये मैं इधर बना लूंगा 0 0 0 0, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 0 0 0 1 आया है, और इसी तरह सेकंड वन, ठीक है, ये 0 0 1 0, और यहाँ पे आपके पास 0 0 0 1 आ रहा है। रिजल्ट इसका 2 2 आ रहा है, तो हमारे पास 9 से ऊपर नहीं जा रहा, तो इसलिए इसमें 6 ऐड नहीं होगा, हमें नजर आ रहा है एडिशन से ही। कैरी इन दोनों में फिलहाल 0 है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जब आप कैस्केडेड कर रहे हो तो जो सेकंड सर्किट का कैरी इन है, जो सी इन 4 जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है, सी इन 4 जो है वो आपके पास ये इनवैलिड बीसीडी डिटेक्टर की आउटपुट है। ये वाला कैरी इन आपके पास आउटपुट आ रहा है बीसीडी वैलिड डिटेक्टर से, और ये वाला सी आउट आपके पास आएगा, जो एक्चुअल सी आउट आ रहा है वो ये आपके पास आएगा, इन दूसरे जो इनवैलिड बीसीडी डिटेक्टर की आउटपुट आ रही है। दोनों का सी आउट जो लास्ट वन है वो क्योंकि आपके पास नंबर करेक्ट है तो सी आउट 4 सी आउट 8 कर दे ऑफ फर्स्ट 4 बिट, और सी आउट ऑफ सेकंड 4 बिट्स कर देते हैं, 8 आ जाते हैं। तो अब इसको ऐड करते हैं 0 0 0 और 0 0 1 0, तो ये यहाँ पे आपके पास 1 प्लस 2, तो यहाँ पे आपके पास 0 0 1 0 आएगा। लेस देन 9 है, 0 यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐड होगा, यहाँ पे जीरोस आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास सिंपल
2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 1 + 1 है तो यहाँ पे भी 0 0 1 0 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास ऐड नहीं हो रहा तो आपके पास 2 आ रहा है, तो आपके पास ये आ रहा है। इसी तरह अगर इन केस कोई नंबर है हमारे पास जिसका रिजल्ट यहाँ पे 9 से ऊपर आ रहा है, इन केस 99 से ज्यादा आ रहा है, तो फिर क्या होगा? जिस तरह 52 + 53 करें तो आपके पास क्या एडिशन होगी? 2 + 3 5 105। अब ये एक इनवैलिड कंडीशन में आएगा 5 और 10। ठीक है, जब 10 आएगा, एक जो फर्स्ट हाफ में आपके पास 5 आ रहा है, सेकंड में आपके पास 10 आ रहा है, तो जो सेकंड वाले पे आएगा यहाँ पे आपके पास फिर आपको +6 ऐड करना पड़ेगा, जो कि 16 आ जाएगा। 16 जब 10 में आप 6 ऐड करोगे तो आप 15 के बाद आपके पास अगेन 0 आता है, तो बेसिकली ये आपके पास 0 आएगा। और ये जो कैरी आउट है यहाँ पे एरर डिटेक्टर सर्किट का, वो 1 होगा, तो आपके पास रिजल्ट में 105 आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास बीसीडी एडिशन मोर देन 1 डिजिट ऐसे काम कर रही है। ठीक है, ये एग्जांपल भी हमारे पास है 99 और 99 की। ये उसी तरह काम कर रही है जो अभी प्रीवियसली मैंने एक्सप्लेन किया कि मेरे पास 9 और 9, 9 और 9, 10019 की बाइनरीज है। ठीक है, हमने दो नंबर ले लिए। अब सी इन यहाँ पे 0 है, इसका सी इन 4, जो सी इन 4 ये है, ठीक है, ये 1 आएगा। ठीक है, सम 0011 0010। ठीक है, 0010 आपके पास किसकी बाइनरी आ रही है? 0010 हमारे पास आई थिंक 9 + 9 हो रहा है, तो मेरे बाकी हम छोड़ रहे हैं। 0010 आपके पास 2 की 1001 है, तो 1001 आपके पास आता है 9। ठीक है, 1001 9 + 9 18 आएगा। सम 3 में आपके पास जाहिर ही बात है ग्रेटर देन 4 बिट्स हैं, तो सी आउट आपके पास कैरी 1 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। एडिशनल सर्किट का और जो आउटपुट है वो भी आपके पास 1 1 आ जाएगी। जो करेक्शन सर्किट है उसमें भी 1 1 आएगी। 18 इज नॉट अ वैलिड बीसीडी नंबर, सो यू हैव टू ऐड 6 इन इट। ठीक है, तो 0110 इसमें भी 6 इसमें भी ऐड हो रहा है, 0110 इसमें भी ऐड हो रहा है, और रिजल्ट आपके पास जो आ रहा है वो 1001 1001 और कैरी 1। तो जो टोटल आपके पास रिजल्ट आएगा 99 + 99 का, वो 11001 1 1 2 और 3 ये आ रहा है। ठीक है, ये उसी तरह परफॉर्म होगा जिस तरह अभी मैंने ऊपर एक एग्जांपल परफॉर्म की है। इसी तरह 99 + 66 है। ठीक है, अगेन आपको इसमें आउटपुट सर्किट करेक्शन सर्किट के आउटपुट 1 है, यहाँ पे सी आउट 0 है मगर आउटपुट सर्किट 1 आ रहा है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। क्यों? 9 + 6 क्या आ जाएगा आपके पास? 9 10 15 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 आपके पास आएगा। आप इसको निगलेक्ट करते हैं तो 5 आपके पास आ रहा है, तो आपके पास चारों बिट्स 15 के लिए आपके पास चारों बिट 1 1 1 1 है। आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो 4 बिट में, इसलिए कैरी नहीं जनरेट हो रहा। ठीक है, और इसका कैरी क्योंकि इससे जो इनवैलिड सर्किट का कैरी है वो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से कैरी आउट आपके पास आ रहा है। तो हम इसी तरह सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड में फिर हम 6 ऐड करेंगे, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आता है 99 और 66 को ऐड करने के बाद बीसीडी में वो आता है 10110 और 0101। अब अगेन 0101 आपके पास आ रही है 1 2 3 4 5 6 की। ठीक है, 0101 नहीं 01106 की है। 5 की आती है यार ये।
ठीक है, ये 5 की आ रही है, ये भी 5 की आ रही है और ये 1 है, तो 155 का रिजल्ट VCD में ये दे रहा है। 01106 की है, सॉरी 165। अब 99 में 66 ऐड करें तो आपके पास 165 बनता है। 99 प्लस 65 165 66 सॉरी 165 ही होता है। तो रिजल्ट बिल्कुल ठीक आ रहा है। इस एग्जांपल को जिस तरह 99 प्लस 66 है, अगर मैं इधर करता हूँ, इसको मैं यहाँ से सारा अरेज करते हैं। 99 प्लस 65 आ रहा है, तो 99 ए है और ये B 65 है। अब हमारे पास 9 9 6 और 5, इनके पहले हमने 4 बिट्स में 4 बिट्स बाइनरीज देखनी है। तो 9 की तो आपको पता है हमारे पास आएगी 1001 1001, 9 अगेन 1001। 6 की आपके पास होती है 0110 और 5 आपके पास आ जाता है 0101 0101। ठीक है, ये 5 है। तो ये अब हम इधर करके देखते हैं। तो फर्स्ट ए में यहाँ पे भी आपके पास 1001 आ रहा है, यहाँ पे भी आपके पास 1001 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट 4 टू 0 टू 3 आ रहे हैं, अब फिर 0 टू 3 सॉरी 0 टू 3 ये 5 आएगा यहाँ पे 0101 और ये आपके पास 4 टू 7 आपके पास ये आएगा 0110। अब 9 प्लस 5 आपके पास क्या आ रहा है, सीन यहाँ पे 0 है। 9 प्लस 5 आपके पास आएगा 18। ठीक है, सॉरी 9 प्लस 5 आपके पास आएगा 14। ठीक है, 9 10 11 12 13 14। तो रिजल्ट आपके पास 14 आ रहा है, जो कि एक वैलिड नंबर नहीं है। तो सी आउट 1 जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 0110 ऐड होगा 14 के अंदर। 14 के अंदर अगर मैं 6 ऐड करूं, 14 15 16 1 2 3 4 5, तो मेरे पास 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 5 आ जाएगा। अब ये तो 6 है, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 14 की बाइनरी आएगी। अब 14 की बाइनरी जो है वो उस पर कैरी जनरेट नहीं होगा, ऑल्दो मगर एरर सर्किट उसको डिटेक्ट करेगा कि आपके पास 9 से ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि आपका जो नंबर है वो 4 बिट के अंदर ही है, जबकि जब आप 18 की तरफ जाओगे तो 18 आप 4 बिट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, तो उस केस में आपके पास कैरी जनरेट होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मेरे पास आती है 14 की बाइनरी है 1101। ठीक है, 14 की बाइनरी वैसे भी आप देख लें 1001 और 0101 1101 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा 1 आ जाएगा 1, तो ये आपके पास 1110 14 की बाइनरी है। तो यहाँ पे 1110 में आप +6 ऐड करोगे। ठीक है, यानी 0110 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आता है 0 1 + 1 0 1 3 1 है, तो आपके पास 1 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 1 है, 3 1 3 बनेंगे तो 1 1 आ जाएगा, 1 1 अगेन 0 और 1 आ जाएगा। इस कैरी आउट को आप निगलेक्ट करते हो तो आपके पास 0 1 0 0 बनेगा। जो कि हमारे पास 5 आ रहा है। ठीक है, ये मैंने कहीं पे 0 1 65 0 1 0 1 0 0 होगा, 2 raised power 0 2 raised power 1 2 raised power 2 4 रहता है, ये 5 ये 4 आ रहा है। कहीं मैंने गलती की है, कहीं पे मैंने मिस्टेक की है। मेरे पास 14 आ रही है 1 1
0, इसमें 0 1 1 0 0 आ रहा है। दोबारा अगर मैं करूं 0 ट्रिपल 1 0 में 0 1 1 0 को ऐड करें, 6 को ऐड करें, यहाँ पे 0 1 प्लस 1 0 1, यहाँ पे 3 1 आ रहे हैं, 1 प्लस 1 फिर 0 और फिर 1 आ रहा है, ये जनरेट हो रहा है। तो ये मेरे पास 0 1 0 0 आ रहा है। जबकि एग्जाम्पल में मैं देखें तो फर्स्ट इसको ज़रा क्लियर करते हैं, मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है। जीरो वन वन जीरो और 1 0 0 1 और 0 1 1 0 और 1 0 0 1 और 0 1 1 0, यहाँ पे गलती 0 1 1 0 है। ठीक है, ये 6 है और ये 5 है। फर्स्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट में मेरे पास ये आता है। और MST में 1 0 0 1 और 1 0 0 1, ओ सॉरी 1 0 0 1 और 0 1 1 0, 0 1 1 0 0 1 1 0। अच्छा 66 है ना, मैं 65 कर रहा था, सॉरी 65 करेंगे तो 64 ही आएगा। ठीक है, अगर आप 65 करेंगे तो 164 ही आता है, यहाँ ठीक है आ रहा था 4 ही आएगा। ये 0 1 0 0 बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, यहाँ 60 एग्जाम्पल में यहाँ 66 है, मैंने यहाँ 65 ले लिया बाय मिस्टेक, मगर अगर 65 के हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह सेकंड वन पे आ जाते हैं। सेकंड वन में आपके पास 9 प्लस 6 ऐड हो रहा है। 9 प्लस 6 आपके पास रिजल्ट आएगा 9 10 11 10 और 15। 15 जब आपके पास सम आएगा तो आपके पास चारों 1 1 1 होंगे, कैरी जनरेट नहीं होगा, मगर इनवैलिड बिट डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करेगा कि ये 1 है, ये 9 से ग्रेटर है। तो इस प्लस 1 1 1 1 1 के अंदर आप अगेन 0 1 1 0 ऐड करोगे, कैरी जनरेट होगा। ठीक है, इनवैलिड बिट डिटेक्टर से सी आउट यहाँ पे आ रहा है, ये तो ऑल 1 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे क्या आ रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 0 1, अगेन 3 1 है तो 1 1 हो जाएगा 1 0 1। ये आपके पास कैरी पे चला जाएगा, कैरी आउट ये 1 इधर आ जाएगा और पीछे आपके पास बचेगा 0 1 0 1। अब ये 0 1 0 1 आपके पास 5 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें नीचे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ठीक है, सम आपके पास सम 0 to 3 सॉरी 9 प्लस 6 9 प्लस 6 1 0 0 0 1 1 0 1 1 और 1 0 फिर 1। तो यहाँ पे ये जो सम लिया हुआ है ये आफ्टर इन्वर्जन लिया हुआ है, आफ्टर इसने इन्वर्ट कर दिया है। सॉरी ये यहाँ पे है 1 1 1। ठीक है, ये अब 15 के 15 आ रहा है, 9 प्लस 6 9 प्लस 6 15, क्योंकि यहाँ से एक कैरी भी जनरेट हो रहा था, तो 15 के केस में यहाँ पे कैरी जनरेट होगा, तो वो कैरी इसकी वजह से यहाँ पे ये सीन भी 1 है, इसमें 15 प्लस 1 16 आ रहा है, तो 16 में कैरी आउट 1 और तब सारे यहाँ पे 0 0 0 0 हो रहे हैं। ठीक है, इस वजह से तो ये यहाँ पे हम इसमें देख लेते हैं जो फर्स्ट है, तो 1 1 1 1 आ रहा है। ठीक है, ये 9 ये 6 है, 1 प्लस 0 1 1 1 और 1 0 0 1 और 0 1 1 0। मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे कर रहे थे ये आपके पास 1 1 1 आ रहा है। ठीक है, अब इस 1 1 1 में आप अगेन 6 ऐड कर रहे हो। ठीक है, इस 1 1 1 में हम 6 ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास 1 प्लस 0
1 आ रहा है, 1 1 0 1, 3 1 आएंगे तो फिर आपके पास 1, और यहाँ पे 2 1 है, फिर 0 1 आ रहा है, तो कैरी भी जनरेट हो रहा है, और ये 0 1 0 1 आपके पास 6 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या गलती कर रहा था, 1 0 1 1 और 0 और फिर 1, तो 0 1 0 1 मेरे पास क्यों गलत आ रहा है, 0 1 0 1 ठीक आ रहा है ना, 0 1 0 1 ही आएगा। ठीक है, और ये 5 ठीक है ना हमारे पास, 99 प्लस 65 आपके पास जो रिजल्ट आएगा, मैं दोबारा कैलकुलेटर से वेरीफाई करता हूँ। 99 प्लस 65 इज इक्वल टू 164, तो यहाँ पे आपके पास 64 6 आ जाएगा। ठीक है, 0 1 1 0 आपके पास आएगा, तो 6 164 इसका आपके पास रिजल्ट आ रहा है। तो आज के लेसन में इतना ही है। आज हमने देखा है कि हम कैसे 16 बिट या 8 बिट और 4 बिट 16 बिट अप टू इसी तरह BCD कैस्केडिंग में कनेक्ट करके हम कैसे ऐड कर सकते हैं, और कैसे फिर हम ये इसको आगे, इससे हमने 2 एग्जांपल देखी थी, हमने कैसे मल्टीपल डिजिट्स को आप ऐड, मल्टीपल डिजिट BCD नंबर्स को आप कैसे ऐड करते हो। हम लोगों ने देखा था हम कैसे एरर डिटेक्शन सर्किट्स क्या हैं, ये सब आज के BCD नंबर क्या है, इनवैलिड कंडीशंस क्या है, ये सब आज के लेक्चर में हमने देखा। आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम मल्टीप्लायर्स को देखेंगे कि मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।